celebrate it hosting our national flag, playing our national anthem with fervor, we also need to pay homage to the builders of the nation. My dear friends, we are privileged to have been born in free India. We were able to breathe fresh air since our birth. If we want to feel the pain and hardships faced by all the freedom fighters, we must ask our elders born before 1947. It was indeed a Himalayan task for every Indian to face the Britishers and their cruel rule. Hence, it is befitting for us to celebrate such national festivals and recall all those heroic deeds of our freedom fighters. When we regard those martyrs who laid their precious lives for us, we must never forget the common people who sacrificed their lot for the good cause of our nation. Today, we have come a long way in the path of free India and have proved that we are worthy of freedom. So, let us come forward and perform our duty to be well-educated citizens of tomorrow. Let us do our duty sincerely and hustle to achieve our goals and make the flag of our country always flying high. Jai Hind. जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. Today, there won't exist a single Indian who has not heard these lines, not only because of its prominence, but because these were the lines that struck the hearts of millions when they were struggling hard to make this country free. Good morning, Honorable Chief Guest, respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, and all the worthy teachers. Today, I, Supriya Singh, the head girl of Army Public School Prayagraj, is honored for being given this opportunity to share my thoughts on the occasion of Independence Day. Everyone knows the story of our independence, our freedom struggle, but not everyone realizes the number of lives that were laid down for this freedom. Every time this national flag is hoisted, we cannot deny the feeling of immense pride that overpowers all other feelings. The hardships of about 100 years have given us this free air, right from the revolt of 1857 to gaining independence in 1947. We had an ongoing battle, not only with the invaders, but also against our own countrymen. It was the lack of sense of pride and brotherhood that helped the Britishers to rule a country as large and as diverse as India for such a long time. Nevertheless, when we realized the very essence of gaining freedom, we were all together and achieved the status of a sovereign nation. I hope this 75th Independence Day brings our hearts together, not forgetting the role of Indian soldiers and our very own institution in carrying the ideas and the ideals of this battle forward. Thank you. Jai Hind. तो वाजपेयी शिक्षिका प्राइमरी विंग, इस अवसर पर आप सबके सामने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जाग रहे हम वीर जवान। जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम सपूत उनके जो नर थे, अनल और मधु मिश्रण, जिसमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन। एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हालाहल, जितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल। थर थर तीनों लोक कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर। हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम शकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम,
शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम है शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। किस बात का डर हमेशा बना रहता है? कौन सी बात माँ? तू माँ भारती की रक्षा करने में कहीं इस माँ से दूर ना हो जाए। तू युद्ध पर जा रहा है कहीं। अरे माँ, तुम एक फौजी की माँ होकर जंग से डरती हो? वादा करता हूँ वापस जरूर आऊंगा, या तो तिरंगा लहराकर या तिरंगे में लिपटकर, लेकिन आऊंगा जरूर। पहली सैलरी भी अकाउंट में आई और वो फौजी भी आया, पर तिरंगे में लिपटकर। आज वही बेटा माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है, अब हमेशा रहता है। दुनिया उनके बुढ़ापे का सहारा, ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा
शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। कितने तिरंगे में जब उनको देखा बिखर में गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा, तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा। पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हाँ, करती हूँ मैं आपसे वादा। कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूंगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फख्र से मैं कहूंगी। भाव विह्वल कर देने वाला प्रदर्शन, चरणों की धूल बदली। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। एक
रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक दे चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। आज हम स्वतंत्रता का अमृत वर्ष मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए, लेकिन ये जो आजादी मिली एक दिन में नहीं, और ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलनों की अपने आप में एक श्रृंखला है। और जब आंदोलनों की बात होती है तो 1857 की क्रांति को हम नहीं भूल सकते, मील का पत्थर है। उसी पर समर्पित मेरी कुछ चंद पंक्तियां हैं। क्रांति नहीं विद्रोह नहीं वह दर्द भरा अंगारा था, 1857 की क्रांति। क्रांति नहीं विद्रोह नहीं वह दर्द भरा अंगारा था, सदियों के शोषण को जनमानस ने आज निहारा था। चुन चुन कर उसकी चिंगारी, चुन चुन कर उसकी चिंगारी, दीप जले फिर जगह जगह पर, मिटा अंधेरा मन के अंदर, हुई रोशनी सतह सतह पर। एक हुए फिर गांव गांव सब, एक हुए फिर गांव गांव सब, हाथ मिले कंधे उचके, पहली बार देश की मिट्टी ने थी ली अंगड़ाई हंस के। चली गोलियां कहीं पे हिंसा, हुआ वर्ण धरती का रक्तिम, कहीं धुआं था कहीं गदर था, कहीं किसी की सांसें अंतिम। क्रांति का रथ निकल चुका था, क्रांति का रथ निकल चुका था, मगर नहीं था कोई सारथी। कैसे पहुंचे दिल्ली तक रथ, आजादी उस पार थी। सिमट गया नेतृत्व बिना वह, सिमट गया नेतृत्व बिना वह, इनकलाब का पहला नारा, अलसाई उम्मीद हमारी, भटक गया उद्देश्य हमारा। किंतु हुआ कुछ यूं भी उससे, किंतु हुआ कुछ यूं भी उससे, सोया भारत जाग चुका था। देश अपना मिट्टी अपनी जन जन अब पहचान चुका था। इसी गदर की चिंगारी से आजादी परवान चढ़ी थी, इसी विचारों के जज्बा से कुर्बानी की शान बढ़ी थी। अब तो हम आजाद हो गए, अब तो हम आजाद हो गए। देश अपना मिट्टी अपनी, लोग है अपने, सपने अपने, सारे संसाधन भी अपने, फिर भी हूक हृदय में उठती, फिर भी हूक हृदय में उठती, लगते सब कुछ कुछ बेगाने। पर्वत अपने, झरने अपने, बाग बगीचे उपवन अपने, चांद सितारे सब अपने हैं, सूरज से तपती धरती। सागर अपना, नदियां अपनी, फिर भी प्यास नहीं बुझती। इसीलिए कहता हूं, फिर से अंगारा बन जाओ, फिर से अंगारा बन जाओ, फिर से तुम लो बीज लगाओ। कहीं धरा पर घना अंधेरा, दीप जलाकर दूर भगाओ। फाल उठाकर फिर से बोले, देश हमारा जान से प्यारा, मिलकर फिर आवाज लगाएं, इनकलाब का प्यारा नारा, इनकलाब का प्यारा नारा। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभ पावन बेला पर मैं यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का हृदय से अभिनंदन और अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। इस वर्ष
स्वतंत्रता दिवस अपने आप में बहुत कुछ लेकर आई है। आजादी का अमृत महोत्सव, हमारा 50वां वर्षगांठ जो 1971 की युद्ध के उपरांत हुआ, इन सब चीजों के अलावा जो हम सबसे ज्यादा इन पिछले 2 सालों में जूझ रहे हैं वो है कोविड महामारी। उस लड़ाई में भी फौज ने जहां तक हो सका, जिस सीमा तक सरकार ने चाहा उस सीमा तक जाकर लोगों की सेवा करने की कोशिश की। तो उस सेंस में भी फौज ने अपनी फर्ज जो कहते हैं उसको अदा किया। हम इसमें यह भी कहना चाहते हैं, हमारे जो सिविल सहयोगी हैं उन्होंने भी इस लड़ाई में बहुत साथ दिया, और उसी वजह से आज यहाँ पर ये प्रोग्राम जो बच्चों का होता है और बच्चे करते हैं, अध्यापकों को करना पड़ा। मुझे लगता है आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी। हम अस्पताल वाले लोग हैं, हम काफी दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हमें भी इससे छुटकारा चाहिए आपकी तरफ। और उसके लिए आप सबसे हमारा निवेदन है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और सुरक्षा सिर्फ इससे नहीं आएगी, वैक्सीनेशन की जरूरत है। अभी भी लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते हैं, तो इस आज़ादी की लड़ाई के साथ एक ये भी लड़ाई हमें जारी रखनी चाहिए। और मैं चाहूँगा इसमें आप अध्यापक लोग हमारा सहयोग करें, बच्चों को और उनके अभिभावकों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो कृपया दें। इसके अलावा इस स्टेशन में हमारा एमएच आपके बगल में है, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी आपको सहायता की आवश्यकता है, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आइए, और आप सबसे हमारी विनती है कि हम इस देश को सुदृढ़, समर्थ और आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। Good morning, one and all present here. Respected Chief Guest, Brigadier DJ Sharma, Commandant MH, Colonel Manoj Kumar, Senior Registrar and OC Troops, Lieutenant Colonel Chandramohan Tyagi, SO Schools, and respected parents, teachers and my dear students. There are very few students whom we have invited here, because without them the program cannot be a success. So my dear students, we are very happy, right, that you all are here, and especially the prefectorial board, which has just taken in the post few days back. Now every year 15th August is commemorated as the day India gained independence from British rule. Now the day is observed as the culmination of our